بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، قسط نمبر 30 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ میں تو بڑا اداس ہو گیا تھا بہن جی، پر ڈیوٹی تو پھر ڈیوٹی ہوتی ہے نا، کھاری نے آپا رابع کے قریب تخت پوش پر بیٹھتے ہوئے بتایا۔ بھگتانی پڑتی ہے، بہت دنوں بعد شکل دیکھی ہے تمہاری، ایسا لگتا ہے دل میں ٹھنڈ سی پڑ گئی۔ آپا رابع نے محبت بھرے انداز میں کھاری کو دیکھا۔ او جی، لکھ دنیا کہے لاہور لاہور ہے، میں تو بس ایک کوئی بات کہتا ہوں، جو مزہ چھجو دے چوبارے نہ بخارے۔ کاری کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اسے گاؤں واپس آ کر مانوسیت اور اپنائیت کا جو احساس ہو رہا تھا، اس کا اندازہ وہی کر سکتا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی مگر میرے سبق پیچھے پڑ گئے، اس نے آپا رابع کو بتایا۔ ادھر لاہور میں کسی کو اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ 2 گھڑی تھم کے کھاری بیچارے کو تھوڑا سبق ہی دے دے۔ اس کے لہجے میں گلہ تھا۔ سبق صرف استاد ہی دے سکتا ہے کھاری، وہ بھی اپنا۔ آپا رابع نے محبت بھرے انداز میں کھاری کے بال سہلاتے ہوئے کہا، پر بڑے بزرگ تو کہتے ہیں، علم دینا اور لینا پڑھنے والے طالب علم تے پڑھانے والے معلم کا کام ہے، بلکہ فرض ہے، پڑھنے والا ہر کوئی نہیں ہوتا کھاری۔ آپا رابع نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ چلو خیر، معاملہ یہ ہے کہ پچھلا سبق بھی ایک باری پھر پکا کرانا ہے اور نوا تو دینا ہی ہے۔ کھاری نے اصل معاملہ ان کے گوشے گزار کیا، یعنی سب بھول گئے۔ آپا رابع کو افسوس ہوا۔ بھول نہیں گیا، کھاری نے ان کو تسلی دی، پکا کرنا ہے، کان آگے سے پکڑو یا پیچھے سے ایک ہی بات ہے۔ آپا رابع کو اس کی چالاکی پر ہنسی آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے سیر میں رکھے تھیلوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو کھاری لے کر آیا تھا۔ سبزی بھیجی ہے چودھری صاحب نے، سنگاڑے بھی، شکرکندیاں بھی، کچھ فروٹ بھی ہیں، ایک تھیلے میں آٹا اور ایک میں چینی۔ شکر ہے چودھری صاحب واپس آئے، مانو رونق لوٹ آئی ہمارے گھر میں۔ اونچی شانیں سلامت رہیں چودھری صاحب کی۔ آپا رابع نے وافر مقدار میں چیزیں دیکھتے ہوئے کہا اور کھاری کی طرف متوجہ ہوئیں، جو لاہور میں قیام کے دوران گزرے واقعات انہیں سنا رہا تھا۔ السلام علیکم سعدیہ باؤ، کیا حال چال ہے؟ اسی دوران سعدیہ سیڑھیاں اتر کر چھت سے نیچے آئی تو کھاری نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سلام کیا۔ سعدیہ نے کھاری کو جواب دینے کے بجائے راستے میں رکھی لکڑی کی نیچی چوکی کو پاؤں سے ٹھڈا مارا اور ان دونوں کے قریب سے گزرتی کمرے میں چلی گئی۔ اوئے ہوئے ہوئے، کھاری نے سعدیہ کو اندر جاتے دیکھ کر آپا رابع سے کہا۔ سعدیہ باؤ نے تو لگتا ہے نری مرچوں کا سالن کھا لیا ہے، بھلیکے سے۔ وہ ہنسا۔ آپا رابع نے خفگی سے سر جھٹکا۔ پرچے ختم ہو گئے؟ کھاری نے سوالیہ نظروں سے آپا رابع کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، آپا رابع نے خفگی سے جواب دیا۔ تو پھر کیا مسئلہ ہو گیا سعدیہ کو؟ ہنسے کھیلے خوش رہے۔ آگو 10ویں پڑھنی ہے، کھاری نے اپنی عقل اور سوچ کے مطابق خیال ظاہر کیا، پر وہ تو لگتا ہے آگ کا گولا بن گئی ہے۔ کوئی 10ویں نہیں پڑھنی اس نے، یہ گھر بیٹھے اب، آپا رابع نے سخت لہجے میں کہا۔ ہیں جی، کھاری کو ایک دم کرنٹ سا لگا۔ کیوں نہیں پڑھنی جی؟ بس، آپا رابع نے سر جھٹکا، ہم میں اب اتنا دم نہیں اتنا خرچہ کرنے کا۔ پر سعدیہ نے تو ڈاکٹر بننا ہے جی، کھاری اٹکتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر بننا ہے؟ آپا رابع نے تلخ لہجے میں اس کی بات دہرائی۔ زکوٰۃ خیراتوں پر بھی کبھی کوئی ڈاکٹر بن سکا ہے؟ ہمارے پاس کون سے خزانے ہیں جن کے منہ کھول کر اسے ڈاکٹر بنائیں گے؟ بات کچھ کھاری کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ وہ مزید کوئی سوال پوچھے بغیر آپا رابع سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد فارم ہاؤس لوٹ آیا۔ لو جی، میں ان کے گھر سوغاتیں دینے گیا، یہ ادھر حاضری لگانے آ گئے۔ چودھری صاحب کے آنے کا سن کر واپسی پر مولوی سراج کو فارم ہاؤس کے ملاقاتیوں والے کمرے سے نکلتے دیکھ کر اس نے سوچا، جو سچ پوچھو تو مولوی صاحب کبھی نہ بڑے ہی چول ہیں۔ اس نے سر جھٹکا۔ ذرا صبر تو کرو بھائی، چودھری صاحب کو خود فکر ہے، وہ پہنچا دیں گے چیزیں آپ کے گھر پر۔ صبر کدھر ہے سے آئے، بڑا مسئلہ ہے بھائی، وہ دل میں سوچتا اور سر جھٹکتا رہا۔ اس رات چودھری صاحب کے بلاوے پر بھی اسے فوراً مولوی سراج سرفراز کا ہی خیال آیا تھا۔
लो जी, चौधरी साहब सोचते होंगे कि मैं आगा पीछा कर गया हूँ, सौगातें नहीं पहुँचाई मैंने मौलवी साहब के घर। वो दिल में सोचता और मौलवी सराज को कोसता चौधरी साहब के पास आया था। बैठो खारी। चौधरी साहब जो मास्टर कमाल से मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने मास्टर कमाल को कमरे से बाहर जाने का इशारा करते हुए कहा। मास्टर कमाल के जाने के बाद चौधरी साहब ने खारी के कमरे के दरवाजे के अंदर से लॉक करने का हुक्म दिया। खारी बेटा जी, मैंने तुझे कभी गैर समझा। लॉक करके वापस आने के बाद जब चौधरी साहब के सामने बैठा तो उन्होंने सवाल किया। नहीं जी, खारी ने सर हिलाया। कोई मसला, कोई शिकायत कभी तुझे मुझसे हुई? दूसरा सवाल आया। नहीं जी। क्या तू समझता है कि मैं तेरे लिए जो भी सोचूंगा भला ही सोचूंगा? तीसरा सवाल। हाँ जी बिल्कुल। बेखबर खारी ने जोर जोर से पुरजोश अंदाज में सर हिलाया। तो बस फिर बेटा समझ ले, जो फैसला मैंने आज तेरे लिए किया है इसमें भी तेरा भला ही भला है। तेरी खुश जिंदगी संवर जाएगी। चौधरी साहब ने पुरअतमान अंदाज में कहा। हैं जी। खारी ने हैरत से उनकी तरफ देखा। कैसा फैसला जी? इसका दिल धक धक कर रहा था। कहीं मेरी ड्यूटी फिर से डंगरों को वाली हवेली में तो नहीं लग गई, इसे ख्याल आया। मौलवी सिराज की धी रानी जो है ना, चौधरी साहब ने कहा। जी जी सादिया, खारी ने तेजी से कहा। इससे तेरा निकाह तय कर दिया है मैंने। आज से ठीक 10 दिन बाद, ये जुम्मा छोड़कर अगले जुम्मे। चौधरी साहब ने धमाका किया। खारी के होश व हवास उड़ गए। सर ना उठाना, दम ना मारना खारी, तू चौधरी साहब का कर्जदार है, इनके एहसानों के नीचे दबा हुआ है। मजाल ना कर सर उठाने की, दम मारने की। इसने अपने कमरे में बिछी खरी चारपाई पर लेटे लेटे और करवटें बदलते बदलते 50वीं मरतबा मासी जन्नत की ये बात याद की और ख़ुद को इस बात के साए तले लाने की कोशिश की। मौलवी सिराज की धी रानी जो है, इससे तेरा निकाह तय कर दिया है मैंने। आज से ठीक 10 दिन बाद, ये जुम्मा छोड़कर अगले जुम्मे, अगले ही लम्हे इसे अपनी समात के इर्द गिर्द बड़ी ताकत का बम फटता महसूस हुआ। सादिया कलसूम, इसने दिल में दोहराया और इसे लगा जैसे चारपाई के बांध में कांटे उग आए थे और वो कांटे इसके कपड़ों से पार जिस्म में खुबे जा रहे थे। वो तड़प कर उठा और फर्श पर बैठ गया। अंदर की बात खारी पुत्र अंदर ही रह जानी चाहिए। जिस जिस राज पर मौला ने पर्दा डाला है, बंदे को इसका पर्दा उतारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसे कानों को हाथ लगा कर कहते चौधरी साहब का चेहरा याद आ गया। तेरा दौड़ दौड़ कर मौलवी सिराज के घर जाना, सोने और चंगी सौगातें चुन चुन कर इनके लिए थैलों में भरना अभी बहुत थोड़े लोगों की नज़रों में आया है। और मौलवी सिराज की धी रानी को खालम खाली फार्म हाउस में लाना और इसे यहाँ दोपहर से शाम तक रखना, तो अल्लाह के सिवा सिर्फ इस एक इंसानी आँख ने देखा है। पुत्र ओए सुन सुन सुन। खारी के जिस्म पर लफ्ज़ों की संगबारी शुरू हुई थी। अल्फाज के ज़रिए संसार किए जाने की तारीख कभी किसी तारीखदान ने रकम नहीं की होती तो शायद चौधरी सरदार जैसे पढ़े लिखे शख्स को इसका सलीका ज़रूर होता। फर्श पर बैठे बैठे इसे जैसे अपनी तरफ आते पत्थरों से खुद को बचाने की खातिर बाजू अपने आगे फैलाए, मगर फिर भी अपना बचाव नहीं कर पा रहा था। खालम खाली मियाँ फार्म हाउस में दोपहर से शाम पत्थर जैसे इसके जिस्म के हर हिस्से पर पड़ रहे थे। मैं इसनु फार्म हाउस दिखाया था जी, इसनु बहुत शौक़ था जी देखने का। इसके पास ढाल के लिए अल्फाज कम थे, बेरबत थे और शायद खोखले भी। कभी चोर ने भी माना है कि इसने चोरी की थी, वो तो ये ही कहेगा कि मैं तो बड़ा मासूम हूँ। चलो मगर बात तो सच्ची है ना। तुम मौलवी की धी रानी को इधर लाए थे, इसको ढाल के लिए इस्तेमाल किए ये अल्फाज महंगे पड़े थे। इसका इकरार जुर्म साबित हुआ था, लेकिन अल्लाह ने पर्दा डालने और पहले से पड़े पर्दे को कायम रखने का हुक्म दिया है। चौधरी साहब ने कितने इत्मीनान से इसकी बेज़रर हरकत को गुनाह के मानी पर हाँ दिए थे। इस बात का मौलवी को इल्म नहीं, वो तो मेरे पास आया था अपनी गरीबी का रोना रोने। इसकी इतनी पसली नहीं कि लड़की को खुद कहीं 2 बोल पढ़ाकर रुखसत कर दे, मगर चाहता यह है कि इस फर्ज से जितनी जल्दी हो सके सबक दोष हो जाए। अब मेरे पास बंदे तो बहुत थे जो ये काम बिस्मिल्लाह करके कर लेते, मगर मेरा ध्यान तेरी तरफ क्यों आया भला? उन्होंने सिख को गौर से देखते हुए कहा, जो निहत्था तीरों के सामने खड़ा था। तू मौलवी के घर उड़ कर जाता है, मौलवी की घर वाली ने तुझे बेटा बनाया हुआ है, मौलवी की धी को तो फार्म हाउस की सैर भी कराता है। वह खारी बाहू
प्यो ही तो पुत्रों की रमज़ें जानते हैं। तू मेरा अपना पुत्र ना सही, तुझे मैंने बेटों की तरह पाला हुआ है। तेरी एक एक जुम्बिश पर मेरी नज़र है। जिस दिन मोहम्मद मालिक ने मुझे बताया था कि इसने अपनी नंगी आंख से तुझे मौलवी की धी के साथ खाली फार्म हाउस में देखा था, मैं इसी रोज़ जान गया था कि अपना खाली जवान हो गया है। अब के आने वाले पत्थर बड़े और वजनी थे, खारी के जिस्म के साथ रूह तक को कुचलने लगे थे। आप हुक्म करें चौधरी साहब, मैं तो तोड़ी का गुड्डा अपने ऊपर से गुजार लूँ। इसने चौधरी साहब के कदमों में बैठकर अपने जुड़े हाथ इनके सुनहरी तिल्ले वाले खुसे पर रखते हुए कहा था, आप अपने हाथों मैनू सूली चढ़ा दो, मैं इस सीर कराऊँ तो उफ भी करूँ तो काफिर कहलाऊँ, पर मेरे मुट्ठे ऐसी बात ना लगाएं, चौधरी साहब ना लगाएं, ना दोहराएं। होता हुआ वो रो दिया था। ओए क्या हो गया है पुत्र जी? उन्होंने नरम हाथों से उसे उठाते हुए कहा, यही तो मैं कह रहा हूँ, जब रब पर्दे रखने वाला है तो हम इंसान कौन होते हैं पर्दे उठाने वाले। जब ही तो मैंने मौलवी पर एहसान भी रख दिया तो तेरे मन की मुराद भी पूरी कर दी। निकाह पढ़ा कर ले आ इसे पक्का ही फार्म हाउस, जितनी मर्जी आए सैर करा ले इसे फार्म हाउस की। इसके बाद तुझे आप पता चल जाएगा कि चोर बनकर फल चखने में मज़ा है या सादा बनकर फल की हिफाजत करने में। ना करें जी, ना करें। इसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो बोलना चाहता था मगर इसके मासूम अल्फाज पर ऐसा वार किया गया कि ज़ुबान गंग होकर रह गई थी। चल शाबाश उठ। चौधरी साहब ने उठकर इसे अपने हाथों से उठाकर अपने सामने खड़ा किया था। मेरा शेर बन शेर, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर। जवानी किस पर नहीं आती, पैर किसका नहीं डोलता। नज़र रखने वाले माँ प्यो का ये ही तो फ़ायदा होता है। जवानी की एक लचक और पैर की एक ही लर्जिश पर मामला ऊपर से पकड़ लेते हैं। चल शाबाश, रोना धोना बंद कर और दिल में फूटते लड्डुओं की खुशी मना चल के। चौधरी साहब ने संगसारी के बाद इसका लाशा रेशम के कफन में लपेटना चाहा था, मगर इसके जिस्म पर पड़ी ज़रबें इसके रूह को चूर चूर कर रही थी। चौधरी साहब के कमरे से अपने क्वार्टर तक कैसे पहुंचा था वो नहीं जानता था। हाँ, इतना मालूम इसे था कि वहाँ से आने के बाद वो अपने होश संभालने से लेकर अब तक की उम्र में पहली बार फूट फूट कर रोया था। वो इतना रोया था, इतना कि इसको लग रहा था इसके ताज़ा दुख के साथ इसके दिल और रूह में इतनी उम्र तक के पड़े सारे फपूले फटकर इसकी आंखों के रास्ते बहने लगे थे। ओ मेरे रब्बा, मैंने कभी गिला नहीं किया, मेरे मुंह से कभी शिकायत का लफ्ज़ नहीं निकला, फिर तूने मेरे साथ ये क्या किया है? वो अपनी अक्ल के मुताबिक सोच रहा था जब मासी जन्नत इसको ढूंढती इधर आई थी। मासी जन्नत ने इसे अपने हाथों से पाला था। खारी की जो हालत इस रोज़ इसने देखी थी, इससे पहले कभी नज़र नहीं आई थी। बता तो सही हुआ क्या है? मासी जन्नत ने अपनी मशक्क़त से फौलाद होते हाथों की उंगलियां इसके बाजू पे खबोते हुए झंझोड़ कर पूछा था। बंदे का कोई एक संगी, कोई एक बेली ऐसा होता है खारी, जिससे दिल का हाल कहकर वह हल्के हो जाए। बोल मेरा पुत्र, क्या हुआ? हमें मैं तेरी मासी जैसी मासी हूँ कि नहीं? मासी जन्नत बरसों की मुशक्क़त की धूल के पीछे ज़िंदगी की नरमी और खुशगवारियों को भूल भाल चुकी थी, मगर फिर भी इसने हद्दुल मक़दूर कोशिश की थी कि वो खारी को अपनाहियत का एहसास दिला सके। खारी को भी इस वक्त किसी की ज़रूरत थी, किसी सुनने वाले कान और समझने वाले दिल की ज़रूरत। इसने फटने के से अंदाज में सब कुछ मासी जन्नत की गोशे गुजार कर दिया। पूरी बात एक चस्केदार पहलू भी थी जो मासी जन्नत से लेकर इस गाँव की तकरीबन हर औरत के दिलचस्पी का बायस हो सकता था, और इसी पर मासी जन्नत का पहला रद्द अमल आया। हाय वे वह झल्लिया, तू इसे मेरे सामने लेकर आता फार्म हाउस में, मुझे बताता मासी मुझे मौलवी की लड़की पसंद आ गई है, तो मैं इसकी खातिर खिदमत कर अलग करती और चौधरी साहब को खुद बताती कि मौलवी के पास रिश्ता लेकर जाएं। खारी को मासी जन्नत के जुमले खुद पर उछाले गए। पत्थरों में मज़ीद असाफा महसूस हुए थे। मासी, जो तू समझ रही है वो बात नहीं है, तू कह सकती है तो आप जाकर चौधरी साहब को कह दे खारी को माफ़ कर दें। खारी इतना इस काबिल नहीं, खारी की औकात तो बड़ी ऊंची। गल
गल है। अरे वे चलिया। मासी ने अपनी थोड़ी पर उंगली को हैरत से रखा। मन की पसंद खुद चलकर तेरे पास आई है तो कहता है इसे मोड़ दे। तेरे से ज़्यादा झल्लाते शदाई दूसरा कौन होगा। वो नहीं है मन वही पसंद। कोई सुई हाय खारी उलझ कर बुलंद आवाज़ में बोला तो साहब को नहीं ना बताएगी। तो ले फेर मैं आप ही जाता हूँ, खुद गल करता हूँ। कभी हुक्म नहीं माना पर यह हुक्म नहीं सूरी का फरमान है। एक मन घड़त बात का इल्ज़ाम है। ओए मैं तो बहन जी का शागिर्द था, सबक लेता था इनसे। बंदे को इंसान बनने के वास्ते होना दे घर जाता था। जो चीज़ इनके घर पहुँचाता था इसकी छांटी इसलिए करता था कि उस्ताद को माठी सौगात नहीं देनी चाहिए। सादे को फार्म हाउस इसलिए लाया था कि इस बेचारी ने दुनिया देखी नहीं थी। फार्म हाउस इसके वास्ते अमेरिका था, अमेरिका। मैंने सोचा मेरा क्या जाता है जो ये बेचारी ज़रा बाहर दिया शामा देख ले। चाचे मालिक की नज़र पड़ गई थी तो इसी दिन मैंने तो गर्दन पकड़ के पूछता ये क्यों यहाँ आई है। ले कर चौधरी साहब को बता के वो कहते कहते रुक गया। अख थू। इसने चेहरा एक तरफ झुकाकर मुंह से आवाज़ निकाली। मेरा वजूद कीचड़ कीचड़ कर दिया चाचे मालिक ने। मैं सर उठाकर चलता था, इसने मेरी नज़रों में मुझे आप मुँह के बल गिरा दिया। वो ना काका, चौधरी साहब को इनकार ना करना। वो मौलवी से ज़ुबान कर चुके हैं। सर ना उठाना, सर ना उठाना। तू चौधरी साहब का कर्जदार है, तू उनके एहसानों के नीचे दबा हुआ है। मजा ना कर सर उठाने की, दम मारने की। मासी जन्नत ने इसे इसकी हैसियत याद दिलाई थी। इसका बाल बाल चौधरी साहब के एहसानों के नीचे दबा हुआ था। वो खुद अपने वजूद के लिए चौधरी साहब का दम मोहताज था। पर वो हुक्म करते, अपने मान से कहते, ले खारी मैंने चौधरी साहब को ज़ुबान दे दी। जो गल उन्होंने की है इसे मुझसे भारी है। छोड़ परे ये बातें, शादी की तैयारियां कर ले। मैं तो खुद ढोलकी बजाऊंगी। खारी साडा घोड़ी चढ़िया, हमारे फार्म हाउस का राजा घोड़ी चढ़िया। मासी जन्नत ने अपने और खाए दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। तू मेरी बात नहीं समझेगी मासी। वो दुख से बिलबिला कर बोला। कोई भी नहीं समझेगा। इसने मायूसी से सर हिलाया। वो छठ सोच समझ कर की बातें। मासी ने हाथ झटक कर कहा, हमने लोगों को ये बताना है कि खारी का ब्याह मौलवी की बेटी से हो रहा है तो मौलवी की बीवी को उस्ताद कहता है। तो शुक्र कर उस्ताद की दी से ब्याह हो रहा है। नहीं तो चौधराइन ने मुझे इस रजिया चुड़ैल के गले ज़रूर बांध देना था। मासी जन्नत ने उठते हुए कहा और शादी ब्याह को कोई टप्पा गुनगुनाती कमरे से बाहर चली गई। मगर इसी से दिल की बात बल्कि दिल की जलन का बोझ बांट कर भी इसका दिल हल्का नहीं हुआ था। चौधरी साहब के अल्फाज कोड़ों की तरह इसके वजूद पर पड़ रहे थे। वो अगली सुबह तक ज़ख्म हो चुका था। पो फटने से पहले नीम तारीकी में जब काला सफ़ेद तागा नज़र आने लगे, मौलवी सिराज सरफराज की आवाज़ मस्जिद के लाउड स्पीकर पर उभरी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खारी ठंडे फर्श पर धरा अपना अकड़ा हुआ वजूद हरकत में लाया और खड़े होकर कमरे में मौजूद वाहिद खिड़की का पट खोलकर बाहर झांका। बाहर नीम तारीकी थी और खुश्क हवा। वो आहिस्ता कदमों से चलता कमरे से बाहर निकला। खुनक हवा इसके जिस्म से टकराई। इसे अपने अंगारा बनते वजूद को राहत पहुँचती महसूस हुई। हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह। मौलवी सिराज सरफराज नींद की बेखबरी में पड़े हुओं को भलाई की तरफ आने की दावत दे रहा था। खारी ने अपनी जलती आंखों को ज़ोर से बंद किया और फिर ने खोल कर दोबारा सामने के मंजर पर टिका दी। वो इस नीम तारीकी में न जाने क्या देखना चाह रहा था। फिर क्या कहा चौधरी साहब ने। आपा राबे के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और अपने सवाल का जवाब जान लेने की उजलत थी। उन्होंने कहा, मौलवी साहब ये तो कोई मसला ही नहीं। मौलवी सिराज सरफराज ने चाय की प्याली पर आई बारीक सी झिल्ली को उंगली से हटाया। झिल्ली इनकी उंगली के साथ चिमट गई थी। उन्होंने उंगली ऊपर उठाकर झिल्ली को ज़ुबान से चाटा और आपा राबे की तरफ देखा, जिन्होंने अपने सवाल के जवाब के तजस्सुस में इनकी हरकत पर जुज़्ब होते हुए चेहरा दूसरी तरफ नहीं मोड़ा था। फिक्र की बात नहीं तो और क्या है, आपा राबे ने बेचैनी से कहा। ओ जी बीबी,
दम तो ले लो। चौधरी साहब ने चाय का घूंट सुड़कने के बाद कहा, चौधरी साहब के पास हर मसले का हल मौजूद होता है। बादशाह आदमी है वो, इससे बड़ा इशार क्या हो सकता है कि मुझे कहने लगे, मौलवी जी आपकी बच्ची हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो हमारी अपनी बच्ची है, हम किसी अरे गैरे नत्थु खैरे को क्यों ढूंढें बच्ची को इसके साथ रुखसत करने के लिए। बच्ची की ज़िंदगी की देनी होती है। मौलवी साहब के चेहरे पर चौधरी साहब के लिए अकीदत भरी मुस्कुराहट उभरी। ओह, फिर आखिर जवाब क्या दिया चौधरी साहब ने? आपा राबिया मौलवी साहब के इसी अंदाज गुफ्तगू से सख्त चिढ़ा करती थी। दम और लो राबिया बीवी, दम लो। आपा राबिया के साथ इतने साल गुजारने के बावजूद आपको तहम्मुल से गुफ्तगू करने का सलीका नहीं आया। मौलवी सिराज ने प्याला हिलाकर चाय मज़ीद ठंडी करते हुए कहा, क्या सलीका था गुफ्तगू का इनका? बात करती थी मानो मुंह से फूल झड़ते थे। आपा राबिया ने झल्लाकर चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। अब यह मौलवी साहब के लिए आपा राबिया की शदीद नाराज़गी की अलामत थी। हाँ तो चौधरी साहब फरमाने लगे, मौलवी जी आप इस पिंड के बच्चों बड़ों को भलाई की तरफ बुलाते हो, अल्लाह का कलाम पढ़ाते हो, नेकी का दर्स देते हो, बुजुर्गों के किस्से सुनाते हो, आप भी हमारे लिए मोहतरम हो। एक और तफसील, आपा राबिया ने दिल में उमड़ते गुस्से को मुंह बंद के अंदर दांत पीस कर बाहर आने से रोका। बोले, आपकी बच्ची की खातिर इधर उधर क्यों देखें, मेरा खारी हाजिर है। बिलाखिर मौलवी सिराज सरफराज ने चाय का आखिरी घूंट लेते हुए इस इत्तला को अगले उगला जिसको सुनने के लिए आपा राबिया के मुंतज़िर कान बेचैन थे। खारी अल्फाज रुक रुक कर इनके हलक से निकले। इन्हें अपने जिस्म में दौड़ते खून में सनसनाहट सी महसूस हुई। उम्र भर में वाहिद ख्वाहिश जो पूरी हुई थी। कौन कहे कि काश इस लम्हे कुछ और मांग लेती, जबकि मैंने तो मांगना ही यही था। उन्होंने दाएं बाएं देखते हुए सोचा। मैंने कहा, चौधरी साहब खारी आपका ख़ास बंदा है, बेटों की तरह पाला है आपने इसे। हम ठहरे अजनबी, हमारा आगा पीछा देखे बगैर आपने ये कैसे कह दिया? मौलवी साहब ने रसान से कहा, मैंने इसलिए कहा कि बाद में कोई सादिया को ताना ना दे कि जी न जाने ज़ात के कौन होते हैं ये लोग। माशाअल्लाह क्या ईमानदार रूह पाई है आपने। मौलवी सिराज सरफराज आपा राबिया ने अंदर से उठते गुस्से को बाल को दबाने की कोशिश करते हुए कहा, वो कोई एतराज़ किए बगैर रिश्ता डाल रहे हैं और आप अपनी उज़र खुद ही पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या बड़े दिल के मालिक हैं चौधरी साहब। बोले, मौलवी जी बेटियां साझी होती हैं सबकी। मैं आपकी बच्ची की शराफत नजाबत इसके माँ बाप के किरदार से पहचानता हूँ। इतने साल हो चुके हैं आप लोगों को हमारे दरमियान रहते हुए, कोई काबिल एतराज़ बात सुनी ना देखी। बस आप निकाह की तैयारी करें। हैं आपा राबिया के दिल बल्लियों छलने लगा। निकाह के लिए भी तैयार हो गए? अरे राबिया बीबी, अब तो निकाह की तैयारियों में भी मसरूफ़ हो चुके होंगे। मौलवी साहब ने चाय का खाली प्याला लेकर उठते हुए कहा, शादी मर्ग। राबिया आपा ने बरसों पहले ये लफ्ज़ इसके मानी किसी से सुने थे, मगर दरअसल ये कैफियत होती कैसी है ये इस रोज़ इन्हें पता चला था। अगले लम्हे इनकी नज़र इस जगह की बदहाली पर पड़ी जिसमें वो बैठी थी। कोठरी नुमा तंग कमरा जिसमें 3 चारपाइयाँ बमुश्किल बिछी थी, एक जस्ती ट्रंक और चमड़े का एक सूटकेस फर्श पर बिछा घिसा हुआ बदनुमा नुमदा जिसमें साल ब साल नई सुराख नमूदार होने पर इसके साफ़ और मुकम्मल हिस्से को ऊपर के सतह पर रखने के चक्कर में तय होता होता एक फर्शी गद्दी की शक्ल इख्तियार कर चुका था। मौलवी सिराज जिस पर बैठकर खाना खाते और तस्बीह पढ़ते थे, दीवार पर लगी पगछत्तियों पर बर्तनों के नाम पर चंद प्लेटें, इक्का दुक्का गिलास और तामचीनी के 2 डोंगे सजे थे। बाकी हिस्से पर सबस कॉटन के जुज़दान में रखा कुरान पाक और दुआओं की चंद किताबें रखी थी। पर छती के ब्रैकेट पर लगी कीलों में से एक पर अनगिनत तस्बीहां लटक रही थी। ये तस्बीहां मौलवी साहब को उम्रा और हज से वापस आने वाले इसी गांव के बासी तोहफे में दे जाते थे। दूसरी कील के साथ हज़ारबंद डालने की सलाई और छोटी सी कैंची लटकी थी। फ़क्र और सब्र, तवक्कल और गना, सादगी और दरवेशी, वो माजी में पढ़े अस्वाक की सच्ची तस्वीरें थीं, मगर वो किस कदर खाली हाथ थीं। इनके पास सादिया को जहेज़ के नाम पर देने को एक तिनका तक ना था। जब ही तो उन्होंने अपने सर में उठती टीस को झटकने की खातिर सोचा, जब ही तो इसके लिए एक ऐसी दूल्हा का इंतखाब मेरे दिल में ठंड डाल रहा है
जिसका बज़ाहिर कोई आगा है ना पीछा, मगर इसकी मस्त ज़िंदगी है। सादिया को न खाने की कमी होगी, न पहनने को कपड़े लत्ते की फ़िक्र। चौधरी साहब अपनी ज़िम्मेदारियों पर लेकर जा रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी निभाना भी जानते हैं। वाह, मैं सदके जाऊँ इस वक्त के जब मुझे ये ख्याल आया और मैंने मौलवी साहब के कान में ये ख्याल फूंक कर इन्हें फार्म हाउस भेजा। कौन कहता है छठी हिस्स कोई चीज़ नहीं होती, ये छठी हिस्स काम नहीं करती। सदके जाऊँ इस ख्याल के जो कहता था चौधरी ज़रूर खारी का रिश्ता डालेगा। इसे पता है बेनाम निशान खारी को इससे अच्छा मौका और क्या मिल सकता है। वो झूमे जा रही थी। मैं किसी काबिल नहीं चौधरी साहब, मैं निकम्मा नाकारा बेहैसियत बंदा। मेरे अक्ल जानवरों को पट्ठे डालने, फल बूटे दी चटाई नू आगे कुछ नहीं जानती। ये बात मेरे वजूद और मेरी अक्ल तो भारी है। इसने अपने वजूद और रूह के ज़ख्मों पर बर्दाश्त की मरहम पट्टी करने के बाद चौधरी साहब की खिदमत में हाज़िरी देते हुए कहा, मौलवी साहब की फैमिली पढ़ी लिखी अक्लों वाली सोच की मालिक है। मैं उन्हें दा हिस्सा बनने की काबिल नहीं। तुम और मैं ये फ़ैसला करने वाले कौन होते हैं कि हम या कोई और किस काबिल है, किस काबिल नहीं है। चौधरी साहब ये देखकर हैरान रह गए थे कि 2 दिन में खारी हड्डियों का ढांचा बन गया। खारी पुत्र, ये जो आग बुझ जाने पर राख बाकी रह जाती है ना चूल्हे में, कभी कभार इसको कुरे दें तो इसमें से हीरे भी मिल जाते हैं। वो इसकी जर्द रंगत और सियाह हल्के ज़दा अंदर को धंसी आंखों को देखते हुए बोले, नहीं चौधरी साहब जी, मैंने राख नहीं, हीरे तो बड़ी ऊंची चीज़ होते हैं। वो हाथ जोड़कर बोला, तुम्हें मसला क्या है इस सारी बात में। चौधरी साहब नरमी से बोले, देने वाले खुशी से दे रहे हैं, इन्हें तो जैसे हफ्ते अकीम की दौलत हाथ लग गई है। तुमने अपना हुलिया काहे को ख़राब कर लिया है, इस बात का बोझ खुद पर लाद कर। वही बोझ है चौधरी साहब जो मैंने आपको बताई थी। मासी जन्नत जो खारी को उनके पास लेकर आई थी बोल पड़ी, इस नमा ने ये दुख खाए जा रहा है कि भाई मालिक ने तो इस पर इल्ज़ाम लगाया है, बहतान बांधा है। ये कहता है इस दिन मौलवी की बेटी अकेली स्कूल से आ रही थी, इसे प्यास लगी थी, गर्मी जो बड़ी थी। ये बाहर वाले फाटक के पास खड़ा था, उस्तानी जी की बेटी करके पानी पिलाने अंदर ले आया। बच्चों को क्यों कि जो शौक़ आ जाता है। इतनी बड़ी इमारत देखकर भला इसके अंदर देखें क्या है। इस काकी ने भी कह दिया कि मैं अंदर से फार्म हाउस देखना है। ये जल्ला मौत पर बनकर इसे दिखाने लग पड़ा। ईद के सदके कोई इधर से नहीं था, इसलिए इसने सोचा इसे किसने देखना है, किसने देखना भी नहीं सिवाय भाई मालिक के, और जाकर आपसे जड़ दिया। सियाने कहते हैं पहले बात को अंदर तक फेरो, फिर फैसला करो बात क्या है। आंखों देखी जाकर आपको सुना देते हैं। इस मिस्कीन को निकाह का मसला नहीं, इस इल्ज़ाम का गम है जो अंदर ही अंदर मिट्टी हो गया है। मासी जन्नत ने खारी की वकील सफाई होने का हक अदा करते हुए कहा, इधर आ मेरे पास। चौधरी साहब जन्नत की बात सुनने के बाद बेख्तियार खड़े होकर बोले। खारी ने खौफज़दा और शर्मसार नज़रों से चौधरी साहब को देखा और ज़ेर लब मुस्कुरा रहे थे। इधर आ। उन्होंने अपने बाजू फैलाए और अपनी बात दोहराई। खारी झिझकते हुए आगे बढ़ा। चौधरी साहब ने अपने वाक किए बाजू में इसका वजूद भरते हुए इसे सीने से लगा लिया। मेरा ईमान था खारी, तू किसी नेक मगर मजबूर माँ की औलाद है। मेरा दिल गवाही देता है तू किसी बेबस की हलाल औलाद है। तेरे अंदर शरीफों का खून दौड़ रहा है। जब ही तो तेरी नज़र में लालच है ना हविस, तुझे खबर ही नहीं कब तेरा बचपन गुजरा, लड़कपन आया और फिर तू जवानी के दौर में दाखिल हुआ। वो इसको पूरी ताकत से सीने से लगाए कह रहे थे, तू बड़ा भागों वाला लड़का है मेरे बच्चे, तू किसी किस्म की फ़िक्र ना कर, मैं तेरी मासूमियत की गवाही देता हूँ। मालिक जैसे लोग क्या जाने बेखबरी, मासूमियत और बाखबरी और हविस के दरमियान एहसास की कितनी बड़ी खलीज हाइल है। इन लोगों ने कभी खलीजें देखी हों, एक किनारे से दूसरे किनारे तक का फासला पाया हो तो पता चले ना। वो जज्बाती अंदाज में न जाने क्या कहे जा रहे थे। खारी इनकी बात का शायद कोई हिस्सा भी समझ नहीं पाया था, मगर चौधरी साहब के सीने से लगने के बाद 2 दिन से कांटों पर घसीटता, किसी अनजानी आग में झुलसता, अल्फाज की संगबारी से ज़ख़म इसका वजूद जैसे एकदम पुरसुकून हो गया था। ज़िंदगी भर इसके दिल, दिमाग और जिस्म को इतनी राहत महसूस नहीं हुई थी
जितनी इस वक्त चौधरी साहब के सीने से लगकर महसूस हो रही थी। वो रो रहा था या हंस रहा था, वो सिर्फ इस आसूदगी को महसूस कर रहा था जो चौधरी साहब की बाहों के हल्के में इसके एहसास में उतरी थी। इसकी थकन, जलन, कुढ़न सब यकसर गायब हो गई थी। इसका वजूद फूलों की तरह हल्का हो गया था। चल शाबाश, भूल जा सारी फिक्रें, निकाल दे दिल से सारे गम और खुशी हो जा। मैं तेरा अपना बाप ना सही, मगर बाप जैसा तो हूँ, और बाप कभी गलत नहीं सोचते अपने बच्चों के लिए। चौधरी साहब ने इसका माथा चूमते हुए कहा था। ओए किधर मर गए हो सारे? फिर उन्होंने अपनी मखसूस बुलंद आवाज़ में बाहर किसी तरफ चेहरा करते हुए आवाज़ लगाई। ओए अपने दूल्हे राजा मोहम्मद इफ्तिखार के निकाह की तैयारियां शुरू करो भाई। उन्होंने जैसे सबसे बड़ी मनादी करने की कोशिश की कि फार्म हाउस में बर्पा होने वाली अगली तकरीब की नौयत क्या होगी। जन्नत बीबी सब चीज़ों की लिस्ट बना ले, चौधराइन के पास फेरा डाल, इसे भी बता दे कारी शहजादे का निकाह हो रहा है। कपड़ा लत्ता, जूती, हार सिंगार सब तैयारियां कर ले। दिन में कितने ही दरमियान में पल के पल में जैसे हर एक की दौड़ें लगना शुरू हो गई थी। मास्टर कमाल खाने बैत की लकड़ियाँ, टोकरियाँ और मिठाई का हिसाब किताब लगाने में मसरूफ़ हुआ। गांव का बड़ा नाई मोटरसाइकिल भेज कर बुलवाया गया। जन्नत के ज़रिए खबर चौधरानी तक पहुंची, जिसने ये खबर सुनते ही आदतन दुपट्टा मुंह में देकर दबे लफ्ज़ों सरगोशी की। मुझे तो पहले ही शक था, ये खारी दौड़ दौड़ कर वाइन के घर क्या करने जाता है। शी, जन्नत ने होठों पर उंगली रखते हुए चौधराइन को खामोश रहने का मशवरा दिया। चौधरी साहब ने कोई ऐसी बात करेगा तो बड़ा गुस्सा करेंगे। रिश्ता उन्होंने अपनी मर्जी से तय किया है, खाली गरीब को तो पता भी नहीं था। हाय हाय, फिर चौधरी साहब को आफत क्या आ गई थी दस्ते दोस्ती रिश्ता करने की। खाली गरीब की अभी उम्र ही क्या थी है, अभी कल की तो पैदाइश है न। चौधराइन चौधरी साहब के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। जन्नत की तंबी पर फौरन दूसरी तरफ होते हुए बोली, खारी हमारा अपना बच्चा, हमारे हाथों पला बड़ा, इस मौलवी के तो ख़ानदान का ही कोई अता पता नहीं किधर से फिरते फिराते इधर आ गए। लहरी दासों का मौलवी लगता है, शक्ल से तो कोई आगाह ना पीछा। बच्ची की पैदाइश की पर्ची तक तो है नहीं थी इसके पास, फिर भी मौलवाइन का नखरा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। तू देख लेना जन्नत, रिश्ता तो वो जो चौधरी साहब ने कर दिया है। अब खारी के निकाह से पहले मैंने भी महफिल ना कराई तो मेरा नाम भी साबरा नहीं, और इस महफिल में मौलवाइन को खुद आकर दस देना पड़ेगा। पहले भी हम कम नहीं थे, अब तो हम लड़के वाले हैं, लड़के वाले। वो करते हुए सर उठाकर बोली, हाय हाय नी रज़िया, तुझे काहे को सांप सूंघ गया है। फिर इसने अपने करीब बैठी अपनी मुसाहिबा खास को डांटते हुए कहा, चल उठ, बड़ी कोठरी का ताला खोल, इसमें जो ट्रंक रखे हैं इन्हें धूप में ला कर रख। मैं कोई कपड़ा लत्ता देखूं, मैं भी कहूँ इस बार मैं लाहौर जाकर बेवजह ही चीज़ें क्यों खरीदती चली जा रही हूँ। अब समझ में आया कि खारी का निकाह जो होना था इसके लिए खरीद रही थी। वो मुस्कुराकर जन्नत से बोली, चल नीचे उठ। उन्होंने रज़िया को टस से मस ना होते हुए देख कर डांटा, तुझे काहे को मिर्गी पड़ गई है, ऐसे ही जैसे अब गर्मी गिरी के तब गिरी। रज़िया ने दूसरी डांट पर अपना भारी होता वजूद बमुश्किल चौकी से उठाया। इस खबर ने इसके अंदर आग लगाती थी। खारी कमबख्त जिसने इससे कभी इजहार उल्फत किया था, ना कोई वादा वईद, एकदम हरजाई सैया नज़र आने लगा था। रज़िया के मन की ख्वाहिश दिल ही दिल में रह गई और मौलवी की बेटी झपट्टा मारकर खारी को ले उड़ी। वो झिझकती, कलिस्ती, बल खाती बड़ी कोठी का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसी और कम से कम 2 घंटे खारी के हरजाईपन पर आंसू बहाती रही।